ہوگا۔ بلنکن نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان، چین، روس اور چین کے اعلیٰ سفارتکاروں سے الگ الگ ملاقاتوں کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بلنکن نے کہا کہ افغان طالبان بین الاقوامی برادری کی طرف سے ان کی حکومت کو جائز قرار دینے اور مدد کے خواہاں ہیں، لیکن امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ بھی واضح کیا کہ بین الاقوامی برادری سے طالبان کے تعلقات کا انحصار ان کے عملی اقدامات پر ہوگا۔ بلنکن نے طالبان کے لیے امریکی ترجیحات کا اعادہ کیا، جن میں افغان شہریوں اور غیر ملکیوں کو افغانستان سے جانے کی اجازت، خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام اور اس بات کو یقینی بنانا کہ افغانستان کو دوبارہ القاعدہ جیسے شدت پسندوں کو دوبارہ استعمال نہ کر سکیں۔ 15 اگست کو کابل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ بین الاقوامی برادری انہیں تسلیم کر لے، لیکن بین الاقوامی برادری مسلسل طالبان پر اس بات کے لیے زور دے رہی ہے کہ طالبان حکومت کو اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا جب وہ ایک ایسی جامع حکومت تشکیل دیں گے جس میں خواتین اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد مستقبل کے مندوب دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے پورے افغانستان میں اپنی عملداری قائم کر لی ہے اور انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ طالبان صحیح معنوں میں لوگوں کی خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے بقول وہ دنیا کے ساتھ روابط استوار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سہیل شاہین نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ چین کے اعلیٰ سفارتکار نے G20 کے وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کی طالبان حکومت پر معاشی پابندیاں ختم کرنے کے لیے زور دیا ہے تاکہ افغانستان خود کو درپیش انسانی بحران اور معاشی بدحالی کے مسئلے سے نمٹ سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے احاطے سے باہر منعقد اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ G20 ممالک کے ارکان کو بین الاقوامی معاشی تعاون کے عالمی پلیٹ فارم کی حیثیت سے اس جنوبی ایشیائی ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وینگ کے بقول افغانستان کے خلاف عائد تمام طرح کی یک طرفہ تعزیرات یا پابندیاں ہٹا دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی تقریروں کا اہم موضوع آب و ہوا کی تبدیلی، کرونا وائرس کے خطرے کا مقابلہ تھا۔ افریقی جزیرے مڈغاسکر کے صدر نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے، آب و ہوا کا بحران بھی پوری طاقت سے حملہ آور ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں 1 لاکھ سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ ہزاروں کو پہلے ہی سے قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد واشنگٹن واپس ہوئے، جہاں انہوں نے کرونا وائرس پر کنٹرول سے متعلق ایک ورچوئل کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بحران کو تھوڑے بہت اقدامات یا درمیانی راستے کے انتخاب سے حل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومتوں، نجی شعبے، سول سوسائٹی کے قائدین اور مخیر حضرات کے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سنگین بحران ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ جو پہلے ہی ترقی پذیر ملکوں کو ویکسین کی 600 ملین خوراکیں دے چکا ہے، کم اور درمیانی آمدن والے ممالک کے لیے فائزر ویکسین کی مزید 50 کروڑ خوراکیں خرید رہا ہے، جس کی جنوری 2022 میں ترسیل شروع کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دوران کئی حل طلب سیاسی مسائل بھی عالمی سربراہان کی تقاریر کا موضوع بنے۔ اپنے ویڈیو خطاب میں اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ایران کو اس کی ایٹمی سرگرمیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی اقدامات پر بہت فکر مند ہیں جو ان کے وعدوں کے برعکس ہیں۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے روزانہ ہی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ ادھر G20 کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج ویڈیو لنک کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما آج جمعے کے روز یہاں واشنگٹن میں بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں تاکہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر انڈو پیسیفک میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
चार अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड के रहनुमा अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा ने मार्च में वर्चुअल मुलाकात की थी, लेकिन आज की उनकी मुलाकात बराह रास्त हो रही है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा है कि क्वाड लीडर्स बाहमी ताल्लुकात को गहरा करने, कोविड-19 का मुकाबला करने, आबो हवा के बहरान से निमटने, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और साइबर स्पेस पर शराकतदारी और आज़ाद इंडो पैसिफिक को फरोग देने जैसे शोबों में अमली ताउन को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अमरीका के इंसदाद दहशतगर्दी हुक्काम ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका को सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्द तंजीम दाइश के खुरासान नामी ग्रुप से है, न कि अलकायदा से, जिसके तालिबान के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की सरबराह ने कांग्रेस की एक समात के दौरान बताया कि जबकि अलकायदा और दाइश दोनों खित्ते में अपनी मौजूदगी को वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, लेकिन इस बात के इशारे मौजूद हैं कि दाइश या इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप का मामला कुछ तब्दील हो रहा है। कौमी इदारा बराए इंसदाद दहशतगर्दी की डायरेक्टर क्रिस्टीन अबीज़ैद ने कहा कि मुझे खास तौर पर दाइश के खुरासान ग्रुप के मुतल्लिक तशवीश है कि वो 26 अगस्त को किए गए हमले के बाद किस तरह अपनी शरंगेजी में इजाफा कर रहा है। अमरीकी फौजी हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान भर में दाइश खुरासान ग्रुप के 2000 कट्टर जंगजू मुख्तलिफ सेल्स में मौजूद हैं, लेकिन कुछ बैरूनी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक दाइश के जंगजुओं की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीका और मगरबी मुल्कों के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों से मुतल्लिक हुक्काम ने इंतबाह किया है कि दाइश के खुरासान ग्रुप ने काबुल जैसे शहरों पर हमले करने की अहलियत बरकरार रखी है। इसके अलावा अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम और आज़ाद माहिरीन इस बात की शहादत की निशानदेही करते हैं कि दाइश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले हिमायती अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं और अमरीका के कानून नाफिज करने वाले हुक्काम के लिए यह बात बाइसे तशवीश भी है। इससे कबल महकमा खारजा के इंसदाद दहशतगर्दी के साबिक कोऑर्डिनेटर समेत अमरीकी हुक्काम इस बात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि दाइश खुरासान बैरूनी दुनिया में कार्रवाइयां कर सकता है। हर चंद के खुरासान ग्रुप के कमजोर होने के साथ साथ उसके खौफ में कमी भी आई है। तालिबान के बानी रहनुमा और अमूर जेला खानजात के वजीर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा है कि तालिबान की माजी की हुकूमत की तरह इस मरतबा भी मुल्क में सजाए मौत और हाथ काटने जैसी सजाओं पर अमल दरामद किया जाएगा। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू के दौरान मुल्ला तुराबी ने कहा कि इस मरतबा तालिबान की हुकूमत में जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे, जिनमें खवातीन भी शामिल होंगी। अलबत्ता अफगानिस्तान के कानून की बुनियाद कुरान पर होगी। उन्होंने तालिबान की जानिब से माजी में खुले मैदान में सरेआम सजाएं देने पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। एपी की खातून सहाफ़ी को इंटरव्यू के दौरान मुल्ला तुराबी ने कहा कि माजी के मुकाबले में इस मरतबा हम में तब्दीली आ गई है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से तालिबान पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने कवानीन में एतदाल पसंदी लाएं और हुकूमत में मुख्तलिफ तबकात खुसूसन अक़लियतों और ख़वातीन को भी शामिल करें। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के सूबाई दारुल हुकूमत जलालाबाद शहर के इलाके हाडा से मजीद 3 लाशें मिली हैं। यानी शाहिदों ने बताया है कि लाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। मकामी हुक्काम ने इस वाक़े के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। जलालाबाद शहर के इलाके अडा से जुमेरात को भी 5 लाशें मिली थी। सूबाई सकाफत और इंफॉर्मेशन हुक्काम ने जुमेरात के वाक़े की तस्दीक की। मकामी ज़राए का कहना है कि लाशें दाइश के जंगजुओं की थी। हाल ही में ISIS के यानी खुरासान ने जलालाबाद शहर में इस हफ्ते के अवाइल में होने वाले कई बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। इन धमाकों में जंगजुओं समेत तालिबान जंगजुओं समेत दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बुध के रोज़ काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमले जिनका दावा दाइश खुरासान ने किया है, इस ग्रुप के आखिरी हमले होंगे। ISIS खुरासान ने जुमेरात और जुमे के वाक़यात पर किसी तरह का कोई तबसरा नहीं किया। तालिबान की वजारत तालीम ने जुमे के रोज़ एक बयान में लड़कियों के स्कूलों को दोबारा खोलने की बाज़ मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि लड़कियों के स्कूलों के मंसूबों को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। बयान के मुताबिक लड़कियों के स्कूलों को दोबारा शुरू करने के मंसूबे पर काम जारी है। सोशल मीडिया पर लड़कियों के तालीम के आगाज़ से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। वजारत तालीम लोगों को यकीन दिलाना चाहती है कि लड़कियों के स्कूलों के मंसूबे पर काम जारी है और इसका नतीजा वक्त आने पर अवाम को बता दिया जाएगा।
मॉस्को तालिबान हुकूमत के रहनुमाओं के साथ रूस के दौरे के बारे में बातचीत कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खबर रसां एजेंसी RIA ने वजारत खारजा के ज़राए के हवाले से बताया है कि मॉस्को तालिबान की हुकूमत के एक वफ्द के काबुल के साथ मुमकिन दौरे पर तबादला ख्याल कर रहा है। इससे हटकर IRA ने तालिबान के नायब वजीर सकाफत और इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा कि काबुल इस तरह के राब्तों की तलाश में है। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की तरफ से आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया कि वो नई अफगान हुकूमत पर गैर जरूरी दबाव डालने से गुरेज करे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने 22 सितंबर को तमाम वफाकी वज़रा के साथ उन्हें सौंपी गई वजारत की कारकर्दगी जांचने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये मशक इससे पहले 2019 और 2020 में भी महदूद पैमाने पर मुख्तलिफ वजारतों के साथ आजमाइशी बुनियादों पर की जा चुकी है। इस मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत के तमाम डिवीजन्स को 2 साल के अहदाफ दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की 41 वजारतों ने अपने 1090 मुख्तलिफ इकदाम तय कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स में पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई मईशतों जैसे तुर्की, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन और बांग्लादेश में सबसे नीचे रहा है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस बारे में मुतारिफ कराई गई बाज़ इस्लाहात काबिल तारीफ हैं, लेकिन असल मसला ऐसी इस्लाहात के मुकम्मल निफाज का है जिसके बगैर बेहतर तब्दीली की तवज्जो नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात फौरी तब्दीलियों की बजाय मजबूई नौयत की मगर टाइम फ्रेम के साथ नाफिज की जाएं और इसका दायरा कार विफाकी, सूबाई और मकामी तीनों सतहों तक बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद ही अवामी मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। भारतीय फौज ने कहा है, दावा किया है कि उसने मुतनाज़ कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की एक ताज़ा कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसके बकौल असले की से लैस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जिनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से था। 2 की शिनाख्त मालूम की जा रही है। श्रीनगर में भारतीय फौज के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने नामानिगारों को बताया कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अस्करियत पसंदों और भारतीय फौज के सिपाहियों के दरमियान झड़प उड़ी के हथलंगा जंगल में हुई। कोर कमांडर ने कहा कि उड़ी सेक्टर में गुज़श्ता 6 दिन के दौरान पेश आने वाला दरअंदाजी का ये दूसरा और भारत और पाकिस्तान के दरमियान नवंबर 2003 में तय पाने वाले फायरबंदी के समझौते की रवां बरस फरवरी में होनी तजदीद के बाद LOC पर पेश आने वाला तीसरा बड़ा वाक़या है। भारतीय फौज ने अपने बयान में यह भी कहा कि वादी कश्मीर में तशद्दुद की सतह कम हुई, लेकिन LOC पर दरअंदाजी की कोशिशें उसके बकौल पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को बरकरार रखने और वादी में असला पहुंचाकर पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी करने की कोशिशों की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान ने भारत की फौज के इस बयान पर ताहाल किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, लेकिन माजी में इस तरह के इल्जामात की बार बार तरदीद कर चुका है। भारत की मशरकी रियासत आसाम के दारांग जिले के सीबा झाड़ इलाके में जुमेरात को पुलिस की जानिब से सरकारी जमीन पर से मुबैना गैर कानूनी तजावजात हटाने की मुहिम के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें 2 अफराद हलाक और कम अज कम 20 जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान एक शख्स लाठी लेकर पुलिस की जानिब बढ़ा था, जिस पर पुलिस ने उसको गोली मारी और जब वो जमीन पर गिर गया तो उसे लाठियों से पीटा। पुलिस का दावा है कि उसने अपनी हिफाजत में कार्रवाई की। वजीर आला अहमद सुवा सुरमा ने भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस वाक़े की अदालती जांच का हुक्म दिया है। उनके बकौल वो इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और ये अफसोसनाक है। अगर जांच के दौरान किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी पाई गई तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक इस कार्रवाई में 4 मजहबी इमारतें और एक निजी इदारे की इमारत को भी मुनहदम कर दिया गया है। बेदखली की इस कार्रवाई में 800 खानदान बेघर हुए हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तफ्तीशकार ने इल्ज़ाम लगाया है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत ने अपने अवाम पर मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म मज़ालिम ढाए हैं जो इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। बुध को यह रिपोर्ट जिनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल में पेश की गई। खुसूसी तफ्तीशकार थॉमस एंड्रूज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी के सामने म्यांमार की फौजी हुकूमत के मुबैना मज़ालिम के बारे में दस्तावेजी शहादतों पर मबनी एक रिपोर्ट पेश की है। और आइए अब पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबरें और कुछ एदाद शुमार पेश करते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गईं। अपनी एक ट्वीट में समीना अलवी ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन वो बेहतर महसूस करती हैं। समीना अलवी से कल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी कोरोना का शिकार हो गए थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 2367 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की चौथी लहर जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 58 जानें चली गई हैं।
भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 26,115 केसेस की तस्दीक हुई है। भारत की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.85% है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना से मजीद 252 मरीज हलाक हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ अमरीकी वैक्सीनेशन मुहिम एक नए मरहले के लिए तैयार है और बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ के मशीरों ने 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए इजाफी खुराक की सिफारिश की है। ये बूस्टर खुराक उनको दी गई फाइजर की आखिरी खुराक के कम अज़ कम 6 माह के बाद दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 18 से 49 साल के लोग अपनी सूरत हाल के मुताबिक बूस्टर का इंतखाब कर सकते हैं। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाज़रा की रिपोर्टों का ये प्रोग्राम अब न्यूज़ बुलेटिन अब ख़त्म होता है। इससे पहले कि आपसे इजाज़त लूँ, आपको बताती चलूँ कि ये बुलेटिन आप फेसबुक के अलावा हमारे ट्विटर अकाउंट, हमारी उर्दू वेबसाइट और उसके अलावा पॉडकास्ट के ज़रिए भी सुन सकते हैं। बहर जलानी को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया के साथ कि आपने इन खबरों में हमारा साथ दिया। हमारे साथ रहिए, हमारी नशरियात सुनते रहिए। खुदा हाफ़िज़।